വാർത്തകളിലേക്ക് വിശദമായി. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ വീണ വിജയനെതിരായ പുതിയ ആരോപണത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി CMRL ജോയിന്റ് MD ശരണസ് കർത്ത. വീണയ്ക്കും വീണയുടെ കമ്പനി എക്സാലോജിക്കിനും പണം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ശരൺ സ്ഥിരീകരിച്ചു. കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായ സേവനങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ചില സർവീസുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീണയുടെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം നോക്കിയല്ല, പ്രൊഫഷണൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോക്കിയാണ് കരാർ നൽകിയത്. അതിന്റെ വളർച്ച കമ്പനിക്കുണ്ടായിട്ടുമുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയെ വ്യക്തിപരമായി അറിയാമെന്നും ശരണസ് കർത്ത ന്യൂസ് 18നോട് പ്രതികരിച്ചു. CMRL MD ശശിധരൻ കർത്തയുടെ മകനാണ് ശരണസ് കർത്ത. 36 മാസം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിശ്ചിത ഒരു എമൗണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കും. അതപ്പോ ഒരു സേവനം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി, അതിനുള്ളൊരു വേതനം ആ കമ്പനിക്ക് കൊടുത്തു. എക്സാലോജിക് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിക്ക് കൊടുത്തു. സേവനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതിനൊരു എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ വേതനം അവർക്ക് കൊടുത്തു. അപ്പൊ ആ സേവനം എങ്ങനെ 100% ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ നമ്മളൊരു എംപ്ലോയിനെ, ഞങ്ങൾക്കൊരു 500 പേര് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്. അപ്പൊ ഈ 500 പേര് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരേ രീതിയിൽ പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കണമെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. പക്ഷെ നമുക്ക് അവർക്ക് നിശ്ചയിച്ച ശമ്പളം കൊടുക്കണ്ടേ? അതൊരു ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ കൺസിഡറേഷനിൽ നമ്മുടെ ശമ്പളം കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? അത് ചലഞ്ച് ചെയ്യും. ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ തന്നെയാണ്. അതിപ്പോ ഒന്ന് നോക്കൂ, ഞങ്ങൾ 36 മാസം കൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ 1.72. അതൊരു റൗണ്ട് ഫിഗർ അല്ല. IT പ്രൊഫഷണലാണ്. അവർ ഒറാക്കിളിലെ എംപ്ലോയി ആയിരുന്നു. അവർ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസും അവരുടെ പ്രൊഫൈലും കണ്ടെത്തിയിട്ട് അവർ ഓക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളത് കൊടുത്തത്. സേവനം ലഭിച്ചേക്കുന്നത് 1 മാർക്കറ്റിംഗ് മേഖലയിലുള്ള സേവനങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 എക്യുപ്മെന്റ്. ഞങ്ങൾക്ക് മെഷീനറീസ് ഉണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനിയാണ്. അപ്പോൾ മെഷീനറീസ് ഉണ്ട്. മെഷീനറീസ് CNC മെഷീൻസ് ഉണ്ട്. മെഷീൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെതായാലും. പിന്നെ ERP സിസ്റ്റം ഇല്ലേ, സാപ്പ് അങ്ങനെ മുതലായ ERP സിസ്റ്റത്തിന്റെ അഡ്വൈസസ് അവരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതലൊന്നും കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുറിച്ചുള്ള നോളജ് ഇല്ല. ഞങ്ങൾ മെക്കാനിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ്. അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു. അല്ല, എന്തിനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് അങ്ങനെ ഉന്നത വ്യക്തിയായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് കിട്ടണ്ടേ? എന്താ ഞങ്ങളുടെ മോട്ടീവ് എന്താ? ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓൺഗോയിങ് പ്രൊജക്ട്സ് ഇല്ല. ഒരു സാങ്ഷൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഗതികൾ, ഒരു സാങ്ഷൻ, ഗവൺമെന്റ് സാങ്ഷൻ കിട്ടേണ്ട യാതൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാലോ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിക്കണം. ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ എന്തിനാ ആളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നത്? വാർത്തയുടെ വിവരങ്ങളുമായി VV അരുൺ ഒപ്പം ചേരുന്നു. അരുൺ, വീണ വിജയൻ വലിയ കുരുക്കിലേക്ക്. അരുണിലേക്ക് വരാം. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾക്കെതിരായ ആരോപണത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി V മുരളീധരൻ. വിജിലൻസ് ചുമതലയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇതിൽ വ്യക്തത വരുമെന്ന് കരുതുന്നില്ല. മന്ത്രി കൂടിയായ മരുമകന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് അറിയണമെന്നും V മുരളീധരൻ ഡൽഹിയിൽ പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഇരുന്നുകൊണ്ട് വിജിലൻസ് വകുപ്പിന്റെ കൂടി ചുമതല വഹിച്ചുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി അന്വേഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരർത്ഥമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം നടത്താൻ മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറുണ്ടോ? മടിയിൽ കനമില്ലെങ്കിൽ ആർക്കും ഭയക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മടിയിൽ കനമുള്ളവനെ ഭയക്കേണ്ടതുള്ളൂ എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മടിയിൽ കനമില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ന് തന്നെ ഈ കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കട്ടെ, അന്വേഷണത്തിന് ആവശ്യപ്പെടട്ടെ. VV അരുണിലേക്ക്. അരുൺ, ഈ ശരണസ് കർത്ത അല്പം മുമ്പ് ന്യൂസ് 18നോട് പ്രതികരിച്ചത് പ്രകാരം വീണ വിജയന് പണം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് സ്ഥിരീകരണം വരുന്നുണ്ട്. മുൻപത്തെ ആരോപണങ്ങൾ പലതു വന്നു പോയി. പക്ഷെ ഇത്തവണ വീണ പ്രതിരോധത്തിലും. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ബോർഡിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരം, ബോർഡ് ഫോർ സെറ്റിൽമെന്റ് തീരുമാനപ്രകാരം ചെയ്യാത്ത ജോലിക്കാണ് വീണ വിജയനെ കൂലി ലഭിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാണ്. സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയുടെ സേവനത്തിനുള്ള പ്രതിഫലമെന്ന കമ്പനിയുടെ വാദം ബോർഡ് തള്ളിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായും എന്തിനും തുക നൽകിയെന്ന് വീണ വിജയനും അതുവഴി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും വ്യക്തമാക്കേണ്ടി വരും. പ്രതിപക്ഷം വളരെ ഗൗരവത്തോടെ വിഷയം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാളെ സഭയിൽ ഈ വിഷയം ഉയർന്നു വന്നേക്കാം. നാളെ സഭയിൽ വിഷയം കൊണ്ടുവരാൻ പ്രതിപക്ഷം ആലോചിക്കുന്നു. സബ്മിഷനായിരിക്കും കൊണ്ടുവരിക. പക്ഷേ ഈ ഓർഡറിലെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിൽ കൂടി പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് എട്ടാം പേജിൽ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഓൾറെഡി ദ നെയിം ഓഫ് സം റെസിപ്പിയന്റ്സ് ആർ ഗിവൺ ഓൺ ദി അബ്രിവേറ്റഡ് മാനർ നെയിംസ് ലൈക്ക് DVOC KK IKRC appear all different places. Sheet Suresh Kumar was asked to explain these short form question number and has reply given to. അതായത്
മറ്റു ചില പേരുകൾ കൂടി ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ KK കേൾക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മുഴുവൻ പേരും അടുത്ത പേജിൽ 9-ാം പേജിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. KK എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയാണ്, AG എന്ന് പറയുന്നത് A ഗോവിന്ദനാണ്, OC ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണ്, പിണറായി വിജയനാണ്, IK ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞാണ്, RP രമേശ് ചെന്നിത്തലയാണ്. ഈ നേതാക്കളുടെ പേരുകൾ ഈ കമ്പനി നൽകിയ പട്ടികയിലുണ്ട്. അതും വരും സമയങ്ങളിൽ പക്ഷേ കൂടുതൽ വാർത്തയെ പുറത്തു വന്നേക്കാം. ഇത്തരത്തിൽ മറ്റു നേതാക്കളുടെ പേര് പിണറായി വിജയന്റെ മകളുടെ പേര് മാത്രമല്ല, പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾക്കെതിരായ ആരോപണത്തിൽ സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം വേണമെന്ന് BJPയും ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് കോൺഗ്രസും ആവശ്യപ്പെടുന്നു. വിവരങ്ങൾ നൽകുകയായിരുന്നു VV അരുൺ. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾക്കെതിരായ മാസപ്പടി ആരോപണം നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം. CMRൽ എന്തിന് ഇത്രയും അധികം തുക വീണ വിജയന് നൽകി എന്നത് വ്യക്തമാക്കേണ്ടത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. ആർക്കെങ്കിലും ഫേവർ ചെയ്യാനുള്ള പദവിയിലല്ല വീണ ഉള്ളതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ആ പദവിയിൽ ഇരിക്കുന്നതെന്നും മാത്യു കുഴൽനാടൻ MLA ന്യൂസ് 18നോട് പറഞ്ഞു. വീണയ്ക്ക് കൊച്ചി മിനറൽസ് ആൻഡ് റൂട്ടൈൽ ലിമിറ്റഡ് എന്ന സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് മാസപ്പടി ഇനത്തിൽ 3 വർഷത്തിനിടെ 1,72,00,000 രൂപ നൽകിയെന്നാണ് ആരോപണം. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ വീണയ്ക്കെതിരെ വീണ്ടും ഒരു ആരോപണം ഉയർന്നു വരികയാണ്. നമുക്കറിയാം, മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കുടുംബത്തിനുമെതിരെയുള്ള നിരവധി ആരോപണങ്ങൾ നിയമസഭയിലടക്കം ഉന്നയിച്ച മാത്യു കുഴൽനാടൻ MLA നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു. KMRL എന്ന കമ്പനി നേരത്തെ തന്നെ വാർത്തകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. എന്ത് സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കണം ഈ കമ്പനി വീണയ്ക്ക് അവരുടെ കമ്പനിക്കുമൊക്കെ ഇത്തരത്തിലൊരു വലിയ തുക നൽകുന്നത്? തീർച്ചയായിട്ടും ആ ചോദ്യത്തിനാണ് കേരളം ഉത്തരം തേടുന്നത്. അതിനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി യഥാർത്ഥത്തിൽ മറുപടി പറയേണ്ടത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളുടെ കമ്പനിയല്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾ ആ കമ്പനിയിൽ നിന്നും എന്തുകൊണ്ട് മാസാമാസം ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ കൈപ്പറ്റി, അത് ആ കമ്പനി ഇന്ന് രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ഇത് പരിശോധിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഒരു അപ്ലൈഡ് ബോഡിക്ക് മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ അവരിൽ നിന്നും സേവനം വാങ്ങിയതിന് കൊടുത്ത പണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ എവിഡൻസ് പരിശോധിച്ചിട്ട് അതങ്ങനെയല്ല എന്നും പ്രമുഖമായ ഒരു വ്യക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളായതുകൊണ്ട് കൊടുത്തതാണ് എന്നും നിയമപരമായി ഒരു അപ്ലൈഡ് ബോർഡ് കണ്ടെത്തിയ നിലയ്ക്ക് ഇനി ഇത് ഇല്ലീഗൽ ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ അല്ല എങ്കിൽ അത് കേരള സമൂഹത്തോട് പറയേണ്ട ബാധ്യത മുഖ്യമന്ത്രിക്കാണ്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളെന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി അദ്ദേഹത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശമാണ് ആ ഓർഡറിലുള്ളത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനോട് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇതിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ചെയ്യാത്ത സേവനത്തിന് നൽകിയ തുകയാണെന്ന്. അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത സേവനത്തിന് വീണയ്ക്ക് എന്തിന് ഈ ഒരു കമ്പനി പണം നൽകണം? അതാണ് ഇല്ലീഗൽ ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രിസ്യൂം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ദാനമായി കൊടുത്ത പൈസയല്ലല്ലോ, ദാനമായി കൊടുക്കുന്ന പൈസയല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ പണത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ഫേവേഴ്സ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. വീണ ഫേവേഴ്സ് ചെയ്യാവുന്ന പൊസിഷനിലല്ല, ഫേവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആരാണ്? വീണയുടെ അച്ഛനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അതുകൊണ്ടാണ് ആ പരാമർശം പോലും അതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നു. വീണയ്ക്ക് പണം കൊടുക്കാനുള്ള മറ്റ് യാതൊരു സാഹചര്യങ്ങളും അവിടെ കാണുന്നില്ല. സോഫ്റ്റ്വെയർ അവരിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും പറയുന്നില്ല. അല്ല, അതൊക്കെ പരിശോധിച്ച് അതൊക്കെ അവരവിടെ ക്ലെയിം ചെയ്തതാണല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീണ വിജയൻ. स्पीकर सर, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे लोकसभा में रीइंस्टेट किया। और पिछली बार जब मैं बोला तो शायद मैंने आपको थोड़ा कष्ट भी पहुंचाया, क्योंकि मैंने इतनी जोरों से अदानी जी पे फोकस किया कि जो आपके सीनियर नेता हैं शायद उनको थोड़ा कष्ट हुआ। तो वो जो उनको कष्ट हुआ, हमेशा अडानी पे अभी भी कष्ट हो रहा है। वो जो कष्ट हुआ, अभी भी कष्ट हो रहा है। विषय पे आइए, विषय पे अभी भी कष्ट हो रहा है, अभी भी कष्ट हो रहा है। ये देखिए, ये सारे ये नहीं मगर सुनिए तो वो जो कष्ट हुआ 1 2 3 4 5 उसका असर शायद आप पे भी थोड़ा हुआ। तो इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, मगर मैंने सिर्फ सच्चाई रखी थी। मगर आज जो
आज जो मेरे बीजेपी के मित्र हैं, आज आपको डरने की जरूरत नहीं है, डरो मत, डरो क्योंकि मत, आज जो मेरा भाषण है डरो मत, और आप डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत। Sit down, sit down, sit down, sit down. डरो मत, डरो मत, डरिए मत, डरिए मत, डरिए मत। स्पीकर सर, अरे बैठो ब्रदर। तो आज कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं अपना भाषण, मेन जो भाषण है वो अदानी जी पे नहीं बोलने जा रहा हूं। आप छोड़िए, तो आप रिलैक्स कर सकते हैं, आप शांत रह सकते हैं, क्योंकि मेरा भाषण आज दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। रूमी ने कहा था जो शब्द दिल से आते हैं वो शब्द दिल में जाते हैं। तो आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा हूं, मैं दिल से बोलना चाह रहा हूं। और मैं आज आप लोगों पर इतना आक्रमण नहीं करूंगा। मतलब एक दो गोले जरूर मारूंगा, मगर इतना नहीं मारूंगा। तो आप रिलैक्स कर सकते हैं। डरिए मत, डरिए मत। अरे रक्षा मंत्री जी आज संभाल लेंगे आप लोग। पिछले साल 130 दिन के लिए मैं भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक गया, अकेला नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ। सर, ये हमारा टाइम खत्म करने का साजिश है। प्रधानमंत्री बोलेंगे ऐसे ही हो गया सर। सारे समाज निकल जाए। समुद्र अधीर समुद्र के तट से माननीय सदस्य प्लीज ऐसे धमकाने का बात की मत बोलो यहाँ पे बोलिए। हाँ प्लीज। मैं समुद्र के तट से कश्मीर की बर्फीली पहाड़ी तक चला। नहीं, लद्दाख को मैंने नहीं छोड़ा। यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, यात्रा जारी है और जरूर लद्दाख आएंगे, घबराइए मत। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा यात्रा के दौरान, यात्रा के बाद कि राहुल तुम क्यों चल रहे हो, क्या तुम्हारा लक्ष्य क्या है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक क्यों जा रहे हो। और जब वो मुझसे पूछते थे, शुरुआत में मेरे मुंह से जवाब नहीं निकलता।
शायद मुझे ही नहीं मालूम था कि मैंने ये यात्रा क्यों शुरू की। जब मैं कन्याकुमारी से शुरू हुआ, मैं सोच रहा था मैं हिंदुस्तान को देखना चाहता हूं, समझना चाहता हूं, लोगों के बीच में जाना चाहता हूं, मगर गहराई से मुझे मालूम नहीं था। थोड़ी देर में मुझे बात समझ आने लगी। जिस चीज से मुझे प्यार था, जिस चीज के लिए मैं मरने को तैयार हूं, जिस चीज के लिए मैं मोदी जी की जेलों में जाने को तैयार हूं, जिस चीज के लिए मैंने 10 साल हर रोज गाली खाई, उस चीज को मैं समझना चाहता था। ये है क्या जिसने मेरे दिल को इतनी, भाई आप रनिंग कमेंट्री बंद करो नहीं तो हम भी चालू करेंगे। सुनने का अपना जिस चीज धैर्य रखो। जिस चीज ने मेरे दिल को इतनी मजबूती से पकड़ रखा था, उसको मैं समझना चाहता। शुरुआत में जैसे मैंने शुरू किया, सालों से मैं हर रोज 8-10 किलोमीटर दौड़ता हूं, तो मेरे दिमाग में था कि अगर मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूं तो 25 किलोमीटर चलने का क्या मतलब, कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैंने सोचा था। आज मैं उस भावना को देखूं तो वो अहंकार था कि मैं ये कर सकता हूं, ये कुछ नहीं है। तो मेरे दिल में उस समय अहंकार था। मगर भारत अहंकार को एकदम मिटा देता है, 1 सेकंड में मिटा देता है। तो हुआ क्या, 2-3 दिन में मेरे घुटने में दर्द शुरू हो गया। पुरानी इंजरी थी और जबरदस्त दर्द। हर रोज मैं उठूं और मेरे घुटने में दर्द, हर कदम में दर्द। तो पहले 2-3 दिनों में जो अहंकार था, जो मतलब भेड़िया जो निकला था, वो चींटी बन गई एकदम। जो हिंदुस्तान को अहंकार से देखने निकला था, वो पूरा का पूरा अहंकार गायब हो गया। और रोज मैं डर डर के चलूं कि क्या मैं कल चल पाऊंगा। ये मेरे दिल में डर था। और जब भी ये डर बढ़ता था, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई शक्ति मेरी मदद कर देती थी। एक दिन मैं सह नहीं पा रहा था, एक छोटी सी लड़की आती है, मुझे चिट्ठी दे देती। मैंने चिट्ठी खोली, 8 साल की थी, उसमें लिखा था, राहुल, आई एम वॉकिंग विद यू, डोंट वरी। उसने मेरे पैर में चोट देखी और उसने अपनी शक्ति मुझे दे दी। सिर्फ उसने नहीं, लाखों लोग ने। और शुरुआत में जब मैं चल रहा था, कोई किसान आता था, मैं एकदम पहले उसको अपनी बात बताता था।
कि आपको ये करना चाहिए, आपको इस प्रकार से काम करना चाहिए। मगर इतने लोग आए, हजारों लोग आए कि थोड़ी देर में मैं बोल नहीं पाया। मैं जो मेरे दिल में बोलने का डिजायर था वो बंद हो गया, बोल ही नहीं पाया क्योंकि इतने लोगों से बोलना था। और एक सन्नाटा सा छा गया, भीड़ की आवाज थी, भारत जोड़ो भारत जोड़ो भारत जोड़ो। और जो मेरे से बात करता था उसकी आवाज में सुनता गया। हर रोज सुबह 6 बजे से रात 7-8 बजे तक आम आदमी, गरीब, अमीर, बिजनेसमैन, किसान, मजदूर, सबकी आवाज। आ रहा हूं आप कल से रुके, अब थोड़ा और रुक लो, 5-10 मिनट रुक जाओ। तो ये चलता गया, मैं बात सुनता गया। और फिर मेरे पास एक किसान आया और किसान ने हाथ में रुई पकड़ी हुई थी और उसने मुझे कहा, अध्यक्ष महोदय, उसने मुझे कहा, मेरी आंख में देखकर उसने मुझे अपना वो रुई का बंडल दिया और उसने कहा, राहुल जी, यही बचा है मेरे खेत का यही बचा है और कुछ बचा नहीं है। मैंने उससे जो मैं नॉर्मली सवाल पूछता था, भैया आपको बीमा का पैसा मिला, वो पूछा, बीमा का पैसा मिला, वो पूछा। और किसान ने मेरा हाथ पकड़ा। किसान मुझे कहता है कि नहीं राहुल जी, मुझे बीमा का पैसा नहीं मिला, हिंदुस्तान के बड़े उद्योगपतियों ने वो मुझसे छीन लिया। मगर इस बार बड़ी अजीब सी चीज हुई। जब मैंने किसान को देखा और वो मुझसे बोल रहा था, तो जो उसके दिल में दर्द था वो मेरे दिल में आया। जो उसके आंखों में शर्म थी जब वो अपनी बीवी से बात करता था, वो शर्म मेरी आंखों में आई। जब उसकी जो भूख थी वो मुझे समझ आई। और उसके बाद यात्रा बिल्कुल बदल गई। मुझे भीड़ की आवाज नहीं सुनाई देती थी, मुझे सिर्फ उस व्यक्ति की आवाज सुनाई देती थी जो मेरे साथ बात कर रहा था। उसका दर्द, उसकी चोट, उसका दुख, मेरा दुख, मेरी चोट, मेरा दर्द बन गया। समझने की कोशिश करो। भाई और बहनों, लोग कहते हैं कि ये देश है, कोई कहता है ये अलग अलग भाषाएं हैं, कोई कहता है ये जमीन है, मिट्टी है,
कोई कहता है ये धर्म है, ये सोना है, ये चांदी है, मगर भाइयों और बहनों सच्चाई है कि ये देश एक आवाज है। ये देश सिर्फ एक आवाज है। ये देश इस देश की लोगों की आवाज है। इस देश के लोगों का दर्द है, दुख है, कठिनाइयां हैं। और अगर हमें इस आवाज को सुनना है तो हमारे दिल में जो अहंकार है, हमारे जो डिजायर्स हैं, हमारे जो सपने हैं, हमारे जो सपने हैं, उनको हमें परे करना पड़ेगा। जब हम अपने सपनों को परे करते हैं तब हमें हिंदुस्तान की आवाज सुनाई देती है, तब तक हिंदुस्तान की आवाज हमें नहीं सुनाई देती। अब आप कहोगे ये बात मैंने नॉन कॉन्फिडेंस मोशन में क्यों रखी? इसका क्या मतलब है कि भारत एक आवाज है, भारत लोगों का दुख है, भारत लोगों का कष्ट है, मुश्किलें हैं। क्योंकि भाइयों और बहनों, अध्यक्ष महोदय, अब पूरा सूद समय जवाब तुमको मिलेगा, पूरा सूद समय देंगे सर। फिर आप हमें मत रोकेगा सर। अध्यक्ष महोदय, फिर आप हमें मत रोकेगा सर। आप हमें मत रोकेगा, फिर आप हमें मत रोकेगा, आप हमें मत रोकेगा, फिर आप हमको मत रोकेगा सर। हम सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, आप हमको फिर मत रोकेगा। तो स्पीकर सर, भारत एक आवाज है। भारत इस देश के सब लोगों की आवाज है। और अगर हम उस आवाज को सुनना चाहते हैं, हमें अहंकार को, नफरत को मिटाना पड़ेगा। स्पीकर सर, कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया। हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने दो भाग में कर दिया है। मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। मैं मणिपुर में रिलीफ कैंप्स में गया। रिलीफ कैंप में आज जा रहा हूं। मणिपुर में रिलीफ कैंप में मैंने महिलाओं से बात की। ठीक है सर, कल देखेंगे। प्रधानमंत्री की बात नहीं करेंगे सर ऐसे। समय मैं मणिपुर गया और मणिपुर के कैंप्स में मैंने महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज तक नहीं किया। एक महिला मुझे कहती है, मैंने उनसे पूछा, बहन क्या हुआ आपके साथ? एक मंत्री बोल रहे, एक मंत्री खड़े होके बोल रहे, एक मंत्री खड़े होके ऐसे कर रहे, एक मंत्री खड़े होंगे तो पूरे सांसद खड़े होंगे यहाँ पे, पूरे सांसद खड़े होंगे यहाँ पे, बैठे नहीं है चुपचाप करिए, पूरे सब खड़े होंगे, पूरे सब खड़े होंगे। कल कांग्रेस पार्टी ने पूरा देश खड़ा होगा आपके खिलाफ, तो पूरा देश कल आपके खिलाफ खड़ा होगा। मैं
बहुत सारी महिलाओं से बात किया, मगर मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूं। एक महिला मुझे कहती है, मैंने कहा क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहती है मेरा छोटा सा बेटा, का सम्मान करें प्लीज, ये सम्मान, एक ही बच्चा था मेरा, कोई शर्म कर लो गल एक ही बच्चा था मेरा, मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने उसको गोली मारी है। मैं पूरी रात, आप सोचिए, आप अपने बेटे के बारे में, बेटों के बारे में सोचिए, मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही। झूठ नहीं, झूठ आप बोलते हो, झूठ मैं नहीं बोलता हूं। मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही और फिर मुझे डर लगा, मैंने अपना घर छोड़ दिया, जो भी मेरे पास था वो मैंने छोड़ दिया। मैंने उनसे पूछा कुछ तो लाई होगी? कहती है नहीं, सिर्फ मेरे जो कपड़े हैं ये मेरे पास हैं। और फिर इधर उधर ढूंढती है और एक फोटो निकालती है और मुझे कहती है यही मेरे पास अब बची है। एक और उदाहरण, दूसरे कैंप में मैं, एक महिला मेरे सामने आती है, मैं उससे पूछता हूं तुम्हारे साथ क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हारे साथ? और जैसे ही मैंने यह सवाल पूछा, जैसे ही मैंने यह सवाल पूछा, आप महिला का दर्द नहीं सुन सकते, महिला का दर्द नहीं सुन सकते, महिला का दर्द सुनने का आपका धैर्य नहीं है, महिला का दर्द नहीं सुन सकते, महिला का दर्द नहीं सुन सकते। जैसे ही मैंने उससे यह सवाल पूछा, बैठो, जैसे सर प्लीज सर, शर्म करिए, शर्म करिए। जैसे ही मैंने उससे सवाल पूछा तुम्हारे साथ क्या हुआ, शर्म नहीं है तेरे को? वैसे ही 1 सेकंड में वो कांपने लगी। उसने अपने दिमाग में वो दृश्य देखा और वो बेहोश हो गई, मेरे सामने कांपती हुई बेहोश हो गई। तो ये मैंने आपको सिर्फ 2 उदाहरण दिए हैं। स्पीकर सर, इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। अरे 2 भाग किए हैं, शर्म करिए। माननीय सभी सदस्यों से कहूंगा शांति रखें प्लीज प्लीज। मणिपुर, हाँ क्या बोल रहे हैं आप? बोलिए। अरे भाई क्या बात है? क्यों बात कर सकते हैं? क्या बात करते हैं? राहुल गांधी ने आज सदन में पानी पी रहे हैं भाई। आप क्या बात करते? बैठो सर, ये राहुल गांधी ने आज जो बातें कही है इस सदन में, बहुत ही बात किया है। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। 60%
शासन किया है, नॉर्थ ईस्ट को इन्होंने खत्म किया है। आज नॉर्थ ईस्ट में जितना मिलिटेंसी है ये कांग्रेस पार्टी ने पैदा किया है। बात करते हैं अपना बात करते हैं। आज नॉर्थ ईस्ट में सारा मिलिटेंट ग्रुप है, सारा कांग्रेस पार्टी की वजह से चला हुआ है। भाषण नहीं सुनना चाहते हैं, आप भाषण नहीं सुनना चाहते, प्लीज बैठिए, 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 प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, चले चलिए, थैंक यू, थैंक यू, सबसे बड़ा थैंक यू, प्लीज प्लीज थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक मिनट बैठिए, बैठिए एक मिनट प्लीज, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, प्लीज, प्लीज बालूजी, प्लीज, प्लीज बालूजी, प्लीज बालूजी, प्लीज बालूजी, प्लीज, प्लीज एक मिनट प्लीज, प्लीज बैठिए। माननीय सदस्यगण, जिस तरीके का व्यवहार आप टेबल पर आकर कर रहे हैं, इस तरीके से सदन नहीं चलेगा। ये तरीका ठीक नहीं है। जब मैंने किसी को कहा है तो कहा है, ऐसे सदन नहीं चलेगा। सदन नहीं चलाना चाहते अलग बात है, अब अच्छी बात कही है, गलत तरीका ये। नो, ऐसे सदन चलने वाला नहीं है। जो माननीय सदस्य टेबल पर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्लीज बैठिए, 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 आप भी बैठिए, आप भी बैठिए। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, प्लीज बैठिए। भारत माता, प्लीज बैठिए, भारत माता, प्लीज बैठिए। प्लीज ब्रदर। मैं बहुत शांति से सुन रहा हूं, इसका तरीका ये नहीं है उचित हो कि आप टेबल पर आए। नहीं, गलत, गलत तरीका ये। आप जैसे मैंने माननीय सर प्लीज, जैसे मैंने, प्लीज ब्रदर, ब्रदर प्लीज, पानी ले, पानी ले। जैसे मैंने भाषण के शुरुआत में बोला, भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। प्लीज, प्लीज, एक मिनट प्लीज, प्लीज बैठिए, प्लीज, प्लीज बैठिए। अब सवाल आप उठता है, बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, आप बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, इसीलिए आपके प्रधानमंत्री चाहते आप। मणिपुर में नहीं जा सकते बैठिए आप, हैं, क्योंकि उन्होंने प्लीज, देश की हत्या की है। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है। मणिपुर में, मणिपुर के लोगों के दिल में। प्लीज एक मिनट बैठिए आप, एक तो सवाल उठता है, एक मिनट बैठिए,
एक मिनट, आप भी विराजे, आप भी विराजे, आप भी विराजो, आप भी विराजो, आप बैठिए सही, नहीं बैठिए, रहने दो आप बैठिए, बैठिए आप, प्लीज बैठिए आप, प्लीज। आप बोल रहे फिर, आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो। प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज 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 प्लीज। देखिए माननीय सदस्यगण, प्लीज प्लीज, माननीय सदस्यगण, भारत माँ हमारी माँ है, हमें सदन में बोलते समय संयम बरतना चाहिए। मेरा अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ, मैं मणिपुर में अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ, मैं आदर से बोल रहा हूँ। आपने मेरी माँ की हत्या की मणिपुर में, एक मेरी माँ यहाँ बैठी है, दूसरी माँ को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है, हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। तो अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं, अगर हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं, तो किसकी आवाज सुनते हैं? दो लोगों की आवाज सुनते हैं, इसकी आवाज सुनते हैं, इसकी आवाज सुनते हैं, और इसलिए सुनते हैं। नो, ये गलत तरीका माननीय सदस्य, देख लीजिए अडानी जी के लिए मोदी जी ने क्या काम किया है, देख लीजिए, ये पहले आप गलत तरीका आपका, माननीय सदस्य आपका गलत तरीका है, आप सीनियर सदस्य हैं, आप इस तरीके का व्यवहार सदन में मत करिए। आप बात कहिए, लेकिन इस तरीके से पोस्टर लाना ये उचित नहीं है किसी तरीके से। रावण दो लोगों की सुनता था, रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य, आप संयमित बोले, आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी, अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। धन्यवाद स्पीकर। आप सदन में किस तरीके का बोलना चाहते हैं? ये सदन है माननीय सदस्य, संसद है। प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। आपने मुझे बोलने को आमंत्रित किया है, और अगर सदन, विशेषतः विपक्ष, मेरे वक्तव्य को सुनने का धैर्य रखे तो बहुत सारी चीजें उजागर हो सकती हैं। यू आर नॉट इंडिया।
believes in merit and not dynasty. And today of all the days, people like you need to remember what was told to the British: quit India. Corruption, quit India. Dynasty, quit India. Merit now finds place in India. अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आपकी पीठ पर, आपके आसन पर जिस प्रकार का आक्रामक बर्ताव आज देखा गया, उसका मैं खंडन करती हूं। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। मैं आज हिंदुस्तानी होने के नाते कहती हूं, मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। मैं इनसे पूछती हूं, इन्हीं की अलायंस के एक सदस्य बैठे हैं जिन्होंने तमिलनाडु में कहा कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत। अगर हिम्मत हो राहुल गांधी में तो आकर भारत के ऊपर इस प्रकार का कटाक्ष करने वाले डीएमके के अपने साथी का खंडन करके बताएं। कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने कश्मीर में रेफरेंडम की बात की। अगर हिम्मत है गांधी खानदान में तो इस सदन में और इस देश को बताए कि कश्मीर को देश से हटाने की साजिश में कांग्रेस के उस नेता का वक्तव्य क्यों है। यू आर नॉट इंडिया बिकॉज यू डिफाइन करप्शन इन इंडिया। यू आर नॉट इंडिया बिकॉज यू डिफाइन इनकॉम्पिटेंस। यू आर नॉट इंडिया। एक मिनट, माननीय सदस्य, ये तरीका ठीक नहीं है। सदन में नारेबाजी करना तरीका ठीक नहीं है। प्लीज माननीय सदस्य बैठिए, उनको अपनी बात कहने दीजिए। आपने अपनी बात कही है, यह तरीका ठीक नहीं है। नो गलत तरीका है आपका, नो गलत तरीका है आपका। स्मृति जी, पुनः कहती हूं अध्यक्ष महोदय, शायद अपने ही कोलाहल में सुन न पाए हो। मणिपुर हमारे देश का अभिन्न अंग है, खंडित न था, न है, न कभी होगा। इनके यूपीए के अलायंस के एक नेता ने तमिलनाडु में एक वक्तव्य दिया है। पुनः कहती हूं कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत। मैं आज गांधी खानदान से, कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, क्या भारत केवल उत्तर भारत है? अगर दम है तो अपने पार्टनर को मुंह तोड़ जवाब दे, अगर हिंदुस्तान में आस्था रखते हैं। कांग्रेस के एक नेता ने अध्यक्ष महोदय कोर्ट में जाकर वक्तव्य दे दिया कि कश्मीर में रेफरेंडम की तलाशना चाहिए संभावना। मैं आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, क्या उनके आदेश अनुसार ये वक्तव्य कि कश्मीर का खंडन हो, भारत विभाजित हो, क्या ये कांग्रेस के नेतृत्व के आदेश के अनुसार है? अध्यक्ष महोदय, पुनः कहती हूं, हमारे राष्ट्र के संसदीय इतिहास में आज तक भारत मां की हत्या की बात करने वाले कभी भी बैठकर मेज नहीं थपथपाते। कांग्रेसियों ने बैठकर मां की हत्या के लिए मेज थपथपाई है। ये बात करते हैं इंसाफ की, ये चेहरा धूमिल है, ये चेहरा धूमिल है। मैं बताऊं किसका चेहरा है, मैं बताऊं किसका चेहरा है अध्यक्ष महोदय। ये चेहरा है गिरिजा टिक्कू का।
सुन लीजिए पंडितों की दास्तान आप भी। गिरिजा टिक्कू का यह चित्र है। 90 के दशक में एक महिला यूनिवर्सिटी में अपना पेचेक लेने जाती है। सारी बातें करूंगी। अपना पेचेक लेने जाती है, बस से घर लौटने का प्रयास करती है। उसको 5 मर्द बस से खींचकर टैक्सी में ले जाते हैं, बलात्कार करते हैं और फिर आरी से उसका बदन काट देते हैं। जब गिरिजा टिक्कू के जीवन पर एक फिल्म में एक प्रति आया, मैं आज कहना चाहती हूं कि कांग्रेस के कुछ प्रवक्ताओं ने उसको प्रोपेगेंडा कहा। सरला भट्ट, आप नहीं चाहते कश्मीरी पंडितों की दास्तान कहीं सुनाई जाए, आप नहीं चाहते वो आइडेंटिफाई हो एज विक्टिम्स। सरला भट्ट मेडिकल स्टाफ थी। 90 के दशक में उसको उसके इंस्टीट्यूट से अगवा करके गैंग रेप किया गया और सड़क के किनारे रखा गया। आज मैं पूछना चाहती हूं कि एक तरफ इनकी अलायंस के लोग हिंदुस्तान को विभाजित करने की बात करते हैं, ये आज अपने आप को इंसाफ के पुजारी बताते हैं, लेकिन मुझे बताइए गिरिजा टिक्कू, सरला भट्ट को कब इंसाफ मिलेगा? हर गली हर मोहल्ले में एक स्लोगन गूंजता था पंडितों के बीच, रलियू सलियू गलीव। पुनः कहती हूं, रलियू सलियू गलीव। आप चिल्लाना बंद करें, समझे पहले। रलियू सलियू गलीव। या तो अपना धर्म बदलो या कश्मीर छोड़ो या यहीं मरो। उनकी आवाज भारत की आवाज नहीं है। उनकी आवाज को आपने कभी नहीं सुना। मैं आज कहती हूं, इन्होंने कहा अश्रु बहाए, भ्रमण किया 84 के दौरान में। मुझ जैसे कई लोग देश की राजधानी में थे और किसी का वक्तव्य ना सुने। अध्यक्ष जी, एक पत्रकार है प्रणय गुप्ता, उन्होंने लिखा कि सिख बच्चों को कैस्ट्रेट करके उनके अंगों को उनकी मां के मुंह में ठूसा गया। आज बोलती हूं, त्रिलोकपुरी में 30 औरतों को इकट्ठा करके चीला गांव में ले जाकर उनका बलात्कार किया। सुल्तानपुरी में एक महिला ने एफिडेविट दी है, मेरे हस्बैंड को मार दिया, बेटी को शादी से 1 रात पहले उठाकर ले गए और उसका बलात्कार किया। एक 45 साल की मां ने कहा सिख दंगों के दौरान कि ना सिर्फ मेरे पति को मारा, ना सिर्फ मुझे गैंगरेप किया, बल्कि मेरे सामने मेरे बेटे पर केरोसिन छिड़ककर उसको आग लगा दी गई। और आज ये भारत की बात करते हैं। कहते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक 130 दिन चल रहे थे। मैं जोड़ों के दर्द पर भाषण नहीं दूंगी अध्यक्ष महोदय, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि जिन वादियों को हिंदुस्तान ने खून से सना देखा है, जिन वादियों में गोलियों की आवाजें हर दिन सुनाई देती थी, जब ये उन वादियों में गए तो जैसे कश्मीरी कहते हैं शीन जंग कर रहे थे, बर्फ के गोलों के साथ अपने के किसी परिजन के साथ खेल रहे थे। अध्यक्ष महोदय, ये तब संभव हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी ने धारा 370 हटाई। आज इस सदन में उल्लेख हुआ है कि ये गए हैं, आई हैव बीन टू मणिपुर, यू माइट हैव नॉट बीन। आज इस सदन में उल्लेख हुआ है कि ये यात्रा में गए और यात्रा में क्या आश्वासन दिया कि अगर इनका बस चले तो धारा 370 ये पुनः स्थापित कर दे। धारा 370 की वजह से
कश्मीर की बेटियों को दहेज के लिए अगर प्रताड़ित किया जाता था तो वहां की बेटियों के पास कानून का सहारा नहीं था, क्योंकि इन्होंने धारा 370 लगाई। कश्मीर में अगर बेटियां प्रदेश के बाहर ब्याही जाती थी तो उनके पैतृक संपत्ति पर उनका अधिकार समाप्त हो जाता था, क्योंकि इन्होंने धारा 370 लगाई। कश्मीर में अगर 14 साल से कम उम्र की बच्ची का 18 साल से कम उम्र की बच्ची का ब्याह रचा दिया जाता था तो उसे कानून का संरक्षण नहीं मिलता था, क्योंकि इन्होंने धारा 370 लगाई। आज जो भग गए हैं सदन से उनसे कहना चाहती हूं कि इस देश में ना धारा 370 लौटेगी, इस देश में कभी भी पंडितों को रलिव सलिव गलिव का धमकी कोई देने वाले बचेगा नहीं। आज कई यहां पर बहनें उपस्थित हैं जो वहां से अपनी आक्रोश को और राहुल जी के प्रति समर्थन को व्यक्त कर रही हैं। 84 के दंगों का विवरण सुनकर, गिरिजा टिक्कू का विवरण सुनकर, और मैंने स्वयं अध्यक्ष जी मणिपुर के मुख्यमंत्री से बात कर त्वरित रूप से वहां पर लोग पकड़े जाएं, ना सिर्फ इसका वहां पर निवेदन किया बल्कि वो लोग पकड़े गए। सीबीआई की इंक्वायरी जारी है। लेकिन जो आज यहां बैठे हैं, मैंने उनसे पूछना चाहती हूं, जो चले गए, उन्होंने कहा वो राजस्थान गए, और राजस्थान में क्या हुआ महोदय? गिरिजा टिक्कू को तो 90 के दशक में आरी से काट दिया गया था। भीलवाड़ा में 14 साल की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार होता है। इस सदन से 2 महिला एमपीज उस परिवार से मिलती हैं। बच्ची जब जिंदा थी गैंगरेप के बाद महोदय, उसे काटा जाता है, फिर उसे भट्टी में डाल दिया जाता है। ये इन महिला सांसदों का वक्तव्य है कि जिस बच्ची को 14 साल की उम्र में जब जीवित थी गैंगरेप के बाद भीलवाड़ा राजस्थान में काटा गया, जलाने के लिए फेंका गया, उसका मात्र एक हाथ भट्टी के बाहर छूट गया था। मैं आज पूछना चाहती हूं अध्यक्ष महोदय, ये आज जो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, न्याय की गुहार इन्होंने तब नहीं लगाई जब 60 साल की एक महिला का पश्चिम बंगाल में उसकी नाती के सामने गैंगरेप हुआ। कोर्ट में केस लंबित है, इनका दिल नहीं दहला और पूछ रहे थे कि मणिपुर के बारे में आप नॉर्थ ईस्ट के बारे में नहीं जानते। जिन्होंने प्रस्तावना की उनसे कहती हूँ, नल्ली का मैसेकर हुआ, 5 मिनट के लिए कांग्रेस के एक नेत्री गई, लेकिन इनका क्या रुख था तब? 2012 में तरुण गोगोई जी ने स्वयं वक्तव्य दिया है कि दंगे हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की केंद्र की सरकार ना ट्रूप्स दे रही है, ना इंटेलिजेंस दे रही है। कोकराझार की बात करते हैं, ये मेरा वक्तव्य नहीं है, तब के कांग्रेस के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का वक्तव्य है। कोकराझार में हिंसा होती है, धुबड़ी में 3 महीने कर्फ्यू रहता। आज महोदय जो लोकतंत्र की दुहाई दे चुके हैं, हम बार बार इस सदन में बार बार इमरजेंसी की गाथा को याद करते हैं। इस सदन में हम लोग बार बार उन नेताओं को, उन सामाजिक संस्थाओं को, उन मीडिया के बंधुओं को, उनकी प्रिंटिंग प्रेस कैसे जबरन बंद कर गई, उसको, इस पर विस्तृत चर्चा होती है। लेकिन इमरजेंसी के कालखंड में
साधारण महिला का इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने क्या हश्र किया। स्नेहलता रेड्डी की आज बात करना जरूरी है। बेंगलुरु की जेल में बंद किया गया और इसलिए बंद किया गया क्योंकि वो सोशलिस्ट थी, भाजपाई नहीं थी, सोशलिस्ट थी। और जब बंद किया 2 मई 1976 को, तब उन्होंने अपनी प्रिजनर्स डायरी में लिखा, और मैं कोट कर रही हूं, जो पब्लिकली अवेलेबल है। As a woman comes in, she is stripped naked in front of everyone else. When a human being is sentenced, is the punishment not enough? Must the human body be degraded and humiliated? ये स्नेहलता रेड्डी के शब्द है जो उन्होंने इमरजेंसी के कालखंड में जेल में लिखे, अपनी अचीवमेंट्स को बताते हुए। जून 6, 1974 में स्नेहलता रेड्डी लिखती है that at least I have achieved something here. I have stopped the horrible beatings the women prisoners used to get. ये कांग्रेस का इतिहास है और ये भारत की बात करते हैं। अस्थमा की पेशेंट थी ये महिला, जेपीजी को तो डायलिसिस ना करने दिया, अस्थमा की इस पेशेंट को दवा नहीं लेने दी। वो 2 बार एस्थमेटिक कोमा में गई और एस्थमेटिक कोमा में जाते जाते जब उनकी हालत बिगड़ी तो पैरोल पर उनको 15 जनवरी 77 में छोड़ा। चार्जशीट में इस औरत का नाम नहीं था और 5 दिन बाद उनका देहांत हो गया। इनका इतिहास खून से सना है और जिनकी हत्या हुई आज वो इनको कटघरे में नहीं ला सकते, इसलिए आज इस सदन में मैं उनका नाम ले रही हूं, उनके बारे में बोल रही हूं। चाहते हैं कि मणिपुर पे चर्चा हो, मणिपुर पे चर्चा करने के लिए बार बार पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री ने गुहार लगाई, बार बार देश के गृह मंत्री ने कहा, हमारे श्रद्धेय राजनाथ जी ने भी कहा कि आप मणिपुर पे सदन पर चर्चा कीजिए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, भागे ये हम नहीं, भागे ये और हम नहीं। और भागने के पीछे कारण क्या? क्योंकि गृह मंत्री जब बोलने लगेंगे, परतें जब खुलने लगेंगी, तब ये मौन साध लेंगे। मौन मुद्रा का उल्लेख हुआ था, मौन थे ये लोग कई चीजों पर और आज भी हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे हाथ में केपीएमजी की एक रिपोर्ट है जो इनके कार्यकाल से संबंधित है, जो कहता है कि करप्शन की वजह से यूपीए की कार्यकाल में हमारे देश की जीडीपी की ग्रोथ को 9% का नेगेटिव इंपैक्ट होगा। ये अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज बोल रही थी, लेकिन ये चुप थे, आज भी चुप हैं। जो लोग जीरो लॉस थ्योरी सिखाते थे, आज उसी कांग्रेस के एक नेता को कोयला घोटाले के लिए सजा हुई है और वो चुप है। लेकिन चुप और बहुत सारी चीजों में रहे महोदय। 2005-6 में यूपीए की सरकार को यह ज्ञात हो गया था कि खुले में शौच करने की वजह से महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। 2005-6 में इनको पता था, ये सरकारी सर्वे में ज्ञात हुआ है, लेकिन ये चुप थे। 2010 में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने कहा, इनकी तब सरकार थी, कि स्वच्छता ना होने की वजह से देश की जीडीपी पर 6.4 का नेगेटिव इंपैक्ट है। ये चुप रहे। महिला का बलात्कार खुले में शौच में हो रहा था, इनको पता था, ये चुप रहे। 2014 तक
देश में केवल 39% आबादी को इन्होंने टॉयलेट की व्यवस्था सुनिश्चित करके दी। 2019 तक 100% कवरेज हुआ। 110 मिलियन टॉयलेट, ये हंसते हैं इस पे अध्यक्ष जी। शायद इनको पता नहीं है कि एक महिला के लिए दिन की शुरुआत में शौच के लिए बाहर जाना या सूर्यास्त का इंतजार करना, शौच के लिए बाहर जाना और वहां उसका शारीरिक शोषण होना, बलात्कार होना, ये कितनी बड़ी सामाजिक और क्रिमिनल चुनौती है, इस बात से इनको कोई सरोकार नहीं, इसलिए उपहास का विषय बनाते हैं। आज मुझे ये कहते हुए शर्मिंदगी है कि मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि खुले में शौच करने वक्त औरत का बलात्कार होता है, ये उपहास उड़ा रहे हैं और महिला उपहास उड़ा रही है। शायद यही लक्षण है कांग्रेस मिथ अलायंस के कि औरत का बलात्कार हो तो ये हंसे, भारत मां की हत्या की बात हो तो ये यहाँ पर तालियां पीटे, ये कांग्रेस का लक्षण है। इनकी प्रस्तावना के वक्त ये कहा गया कि हम बात करेंगे, मात्र एक व्यक्ति से, हम किसी मंत्री से बात नहीं करेंगे, क्योंकि मंत्रियों की कार्यशैली पर इनको चर्चा नहीं करनी। और शायद सच भी है, इनका अपना अनुभव है कि इनके यहां पावर का केंद्र बिंदु एक था। यहां पर फर्क यह है कि हम सब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के भागीदार हैं। इसलिए आज जब गजेंद्र शेखावत जी के मंत्रालय की ओर से टॉयलेट की व्यवस्था होती है तो मैं एक महिला सांसद और नागरिक के नाते इनका भी उतना ही अभिनंदन करती हूं जितना कि प्रधानमंत्री जी का। जल जीवन मिशन महोदय, हमारे देश में जब इनकी सरकार थी तो मात्र 3 करोड़ परिवारों तक नलके से पानी पहुंचता था। अब 2019 का आंकड़ा कहता है कि आपने तब तक 9.5 करोड़ तक पानी पहुंचाया और अब लगभग 19 करोड़ 40 लाख और 12 करोड़ 40 लाख तक आपका पानी नलके से पहुंच चुका है। लेकिन इनको इससे भी सरोकार नहीं कि अगर टॉयलेट बना, महिलाओं का शोषण कम हुआ, देश की साधारण महिला का सम्मान बढ़ा, तो इनसे इनका कोई सरोकार नहीं। स्पष्ट है, गरीब के घर में नल से जल पहुंचा तो कांग्रेस का उसका कोई सरोकार नहीं। ये स्पष्ट है और सही है। हमारा सरोकार है, देश हमारा है, सेवा हमारी है। आज ये उत्तेजित है कि मैं इस सदन में मंत्रिमंडल के अपने कई सहयोगी साथियों का वर्णन करती हूं। एक ऐसी महिला मंत्री का वर्णन कर रही हूं जो वर्तमान में नहीं है। जनधन के माध्यम से 23 करोड़ महिलाओं का बैंक का खाता खुला। ये इनके लिए कोई मान्यता नहीं रखता, ये मुझे स्वीकार है, ये हमारे लिए अहम है। मुद्रा के माध्यम से 40 करोड़ लोगों को जो जीवन में कभी व्यवसाय नहीं कर पाते थे, जिनके पास कांग्रेस की पर्सनल डायलिंग मशीन नहीं थी, उनको मुद्रा का लोन मिला। 27 करोड़ लोन महिलाओं को दिए गए। महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 23 लाख करोड़ रुपया सैंक्शन किया गया मुद्रा के माध्यम से। इनका उससे कोई सरोकार नहीं। 8 करोड़ नौजवान हमारे राष्ट्र के इतिहास में फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स बने। इनका उससे कोई सरोकार नहीं। 1,80,000 अकाउंट्स में स्टैंड अप इंडिया का 40,000 करोड़ का
पैसा दिया गया, 80% महिलाएं। प्लीज, क्या तरीका है? वह अपनी बात कह रही है, तथ्यों के आधार पर कह रही है। आपको खंडन करना है तो आप बोलना, जब तथ्यों के आधार पर करना गलत बात है। नो गलत। माननीय मंत्री जी की अनुमति से सर मैं पुनः बोलूं, तो जैसा कि मैंने कहा, महिला का अगर आर्थिक सामाजिक उत्थान होता है तो इससे इनको कोई सरोकार नहीं। सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करते हैं,